Hello student, this is Lakshmi Khadaria. Welcome back in today's computer class. Let's continue the unit second, and this is our fourth part of unit second. In previous video we have discussed about the allocation of keys to finger on the middle row. Okay, and today I am going to discuss about the allocation of keys to finger on the bottom row. How to finger on the bottom row. So let's start. After learning how to operate keys on home row, the next step is to learn how to operate the keys on the bottom row. Keys Z, X, C, V, N, M, comma, full stop and oblique sign are located in this row. So first step is the left index finger which rests at F will control the V and V. And the right index finger which rests at J will control the N and M keys. Second is left middle finger which rests at D will control the C key, and the right middle finger which rests at K will control the comma key. Third is the left ring finger which rests at at S will control the X key, and the right ring finger which rests at L will control the dot key. Fourth is the left little finger which rests at A will control the Z key, and the right little finger which rests at semicolon will control the oblique key. The left shift key is controlled by the left little finger, and the right shift key is controlled by the right little finger. So students, let's more clear with the practical. Okay, तो स्टूडेंट ये है, अभी फ़िलहाल मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप में मैं बताऊंगी आपको। तो हमारी जो ये 4 फिंगर हैं, ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल और ये रिंग फिंगर और ये लिटिल फिंगर, ठीक है। तो ये जो हमारी फिंगर है इस टाइप से प्लेस होनी चाहिए। जो जी और एच है वो हमारा नहीं होना चाहिए, इस तरह से प्लेस होनी चाहिए। तो जो ये है ये हमें किसको करेगी, बी को, ठीक है। ये वाली इंडेक्स फिंगर है जो हमारी बी और इन दोनों को करेगी, कंट्रोल करेगी। और जो ये वाली फिंगर है डी वाली, डी पे जो है हमारी मिडिल फिंगर, ये हमारी करेगी सी को, ठीक है। और इस तरह से जो एस पे जो फिंगर है लिटिल, वो हमारी एक्स को करेगी और ए वाली जेड को करेगी। अगर हमें शिफ्ट की यूज़ करनी है तो हम इस वाली की से ही, इस वाली फिंगर से, लिटिल फिंगर से ये वाली शिफ्ट की प्रेस करेंगे, और जो हमारा स्पेस बार की है वो हमारा इससे वर्क करेगा, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं राइट हैंड की, तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो इस तरह से हमारा प्लेस होगा। इंडेक्स फिंगर जे पे, मिडल के पे, रिंग फिंगर एल पे, और ये जो हमारा सेमीकोलन पे रहेगा, ठीक है। अगर हमें आपको प्रेस करना है, जो जे वाली पे है इंडेक्स फिंगर, वो हमारी एन और एम को करेगी, ठीक है। अगर हमारी ये की है तो इसको यहाँ पर लेके आओ वापस से उसी पोजीशन पे। तो फिर के है जो इसको करेगी, और जो एल है वो इसको करेगी, और ये जो है कॉलम पे जो हमारी फिंगर है लिटिल फिंगर, वो हमारी इस वाली को ऑपरेट करेगी, ठीक है। और ये जो थंब है तो ये तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी। तो ये जो अगर हमें स्पेस चाहिए तो हम इससे यूज़ करेंगे। जब हम राइट हैंड साइड यूज़ कर रहे हो, स्पेस की जरूरत हो, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर ऑन द नंबर रो। अब नंबर रो पे हम अपनी फिंगर को कैसे अलोकेट करेंगे। इन दिस रो टाइप 1 to 3 with little, ring and middle finger of the left hand, respectively 4 and 5 with the index finger, 4 finger of the left hand. Similarly 0, 9, 8 with the little, ring and middle finger of right hand, respectively 7 and 6 with index finger, 4 finger of the right hand side. Means is the first is the left index finger which rests at F will control the 4 and 5. And right index finger which rests at J will control the 6 and 7 keys. Same as little middle finger जो D पे है वो किसको कंट्रोल करेगी, 3 को, और जो राइट मिडल फिंगर है जो K पे है वो 8 को करेगी। The left ring finger which rests at S will control the second key, and the right ring finger which rests at L will control the 9 number key. The left little finger which rests at A will control the 1 key, and the right little finger which rests at semicolon will control the 0 key. Okay, and how it's work we will discuss in practical. तो ये है मेरी इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर से मैंने 4 and 5, 3 और 3 पे, और ये 2, ये वाली 2 से, और ये जो 1 इससे 1, ठीक है।
इसी तरह ही अगर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो हमारा 6 एंड 7, 8, 9 और फिर ये 0। ठीक है, इस तरह से जो नंबर की है इस तरह से हमें यूज़ करनी है। 6 एंड 7 इधर से, और इधर से हम 4 एंड 5 यूज़ करेंगे, और नीचे भी NM BB। अगर हम बात करते हैं प्रो की, तो U एंड U, Y एंड U। ठीक है, F से करना अगर हमारे लेफ्ट हैंड पे है तो हम इससे करेंगे R एंड T से। अगर हमारा ऐसे हैंड है तो हम डायगनली R एंड T, E, W, फिर Q। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज गाइड की। F and J are called guide key on the computer keyboard. F is the guiding key for left hand and J is the guiding key for right hand. Both contain a small raised tangible mark with the help of which the touch typist can place the finger correctly on the home keys without looking at the keyboard. यही जो है F और J है जो हमें गाइड करती है। अगर ये सही प्लेस पे है तो पूरा जो हमारा हैंड की पोजीशन है वो एक्यूरेट होगी, उससे जो टाइपिंग करेंगे वो भी हमारी एक्यूरेट होगी। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन कीज। द शिफ्ट की इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर, पंचुएशन मार्क एंड अदर सिंबल। इट्स ऑल्सो यूज इन द कॉम्बिनेशन विद फंक्शन की ऑन कंट्रोल कीज। The Alt key is used with Control key and Delete key for special function like it's used to open window. For example, Control plus Alt and Delete option open the task manager. Alt can be used with F4 to exit from MS Word any program. Control plus F10 will maximize the document window. ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन की है ये भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि टाइपिंग का ही पार्ट है। कभी हम टाइपिंग करते हैं तो हमें इन फंक्शन की ज़रूरत होती है, तो अभी ये भी ध्यान होना चाहिए, भी हमें अपनी हैंड से बिना देखे इनको भी यूज़ करना होता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। अब देखो हम टाइपिंग करते हैं तो कुछ मिस्टेक होने पे हमें डिलीट भी करना पड़ता है। जो सारा जो टाइप पार्ट है ये हमारा किसका पार्ट है? डेटा टाइपिंग का ही पार्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट है टू टाइप। अगर हमें टाइप करना है तो टैप ऑन द लेटर्स ऑन द कीबोर्ड एंड द इंप्रेशन ऑफ लेटर विल सीन ऑन द डेस्कटॉप। आपको फिंगर रखनी है, देखना नहीं है कीबोर्ड की तरफ, और उनको प्रेस करना है और जो लेटर्स आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देंगे। टू डिलीट टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट यूज़ द बैक स्पेस टू डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कर्सर। इफ़ यू वांट टू डिलीट द राइट हैंड साइड ऑफ कर्सर यूज़ डिलीट की। थर्ड इज़ टू टाइप नंबर इन ए डॉक्यूमेंट देन यूज़ नमलॉक पैड, है ना, नमलॉक कीज़। फोर्थ इज़ टू टाइप कैपिटल लेटर तो यूज़ कैप्स लॉक की। इफ़ कैप्स लॉक की इज़ ऑन then all the letters will typed in capital letter. If caps lock is off then all the letters in typed in small letter. Clear. Fifth is to type symbol. Look at the keyboard carefully. Are you able to see the keys with one number and a symbol on the same key? जो नंबर की के साथ है उस पर सिम्बल भी दिए होंगे। जो नंबर्स है ना 0 1 के साथ ही नीचे की तो सिम्बल दिए होते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है? उनको शिफ्ट की के साथ यूज़ करते हैं हम। Or to type sentences, press space bar after typing each word. And to type paragraph, press enter key after each paragraph. Enter key will put your cursor on the next line. Next topic is guide for typing. You can mouse the cursor. You can move the cursor by using the arrow key. Use the required arrow key to move forward or backward. Up and down arrow key move your cursor one line up and down respectively. Place your cursor where you want to insert text by moving the cursor with the arrow keys, and when you have placed the cursor at the right position, start typing. You will see that the entire text shifts to the right while typing. Then proper way to use the keyboard. Many keyboards and keyboard trays support the wrist to keep it in a straight position. Right and wrong way to position your hand on a keyboard. कैसे होती है वो हम देखेंगे इस पिक्चर में। इस डायग्राम में देखो जो हमारी फर्स्ट है वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो टॉप में दिया राइट, वो वाली जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही है। सेकंड वाली रॉन्ग क्यों है? क्योंकि देखो हैंड की पोजीशन देखो, हमें हमेशा मिडिल रो में रखना चाहिए। और जो थर्ड में राइट है जो की डिप्रेशन होना चाहिए वो भी लाइट होना चाहिए। और रॉन्ग देखो यहाँ पर जो जो हमारी हैंड की पोजीशन है कौन सी रॉन्ग है, कैसी हमें कैसी रखनी चाहिए, वो राइट पोजीशन है। इन सब का ये मतलब है अगर हमें कोई टाइप करना है तो हम क्या करते हैं, अपनी जो हमने होम रो मिडल रो होम कीज़ हैं उनको हमें भूलना नहीं है, तो वापस को अपना हाथ वहीं लाना होता है। जो हमारी एलोकेशन है फिंगर की अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाती है तो जो हमारी टाइपिंग है, जो हमारी स्पीड है उस पर इफेक्ट हो जाएगा, हम टाइपिंग एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे।
तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी जो की जो हमारे हैंड की पोजीशन है कीबोर्ड पे वो कैसी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है हमने कोई ऐसे एक हाथ यूज़ कर रहे हैं, दूसरा हाथ हमारा किसी और पोजीशन पे, तो उससे भी हमारा क्या है, टाइपिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ठीक है स्टूडेंट। Point to be remembered while using the keyboard. First is don't put pressure on the keys and try to press the key gently. Second is always rest your finger on the home row while typing. While typing, release the key immediately after pressing. Holding the press key for a long time will repeatedly type the same character. Fourth is don't look at the keyboard while typing. फिफ्थ इज़ वाई प्रैक्टिसाइज स्लो प्रोनाउंसिएशन द नेम ऑफ द की, मतलब जब आप टाइप करो तो हल्का हल्का अपनी जो प्रोनाउंसिएशन करते रहो अपने आप खुद से। डोंट टेक एनी मेंटल स्ट्रेस वाइल टाइपिंग एंड प्रैक्टिसाइज टाइप एर्गोनॉमिक्स। बी पेशेंट इफ़ यू कमिट ए मिस्टेक एट इनिशियल स्टेज। अगर आप स्टार्टिंग में टाइपिंग करना करते हो तो आपसे गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर आपको पेशेंट रखना है और अपनी टाइपिंग पे इफेक्ट नहीं आने देना है। मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी और एज बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एक तो स्पीड होती है अभी कैसे टाइप कर रहे हो, एरर कर रहे हो, एरर विद एरर कर रहे हो, एरर विदाउट एरर कर रहे हो। एक्यूरेसी होती है कितने आपने करेक्ट वर्ड टाइप किए हैं। तो ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डोंट सेक्रीफाइस एक्यूरेसी फॉर स्पीड। आप जो है स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। फोकस ऑन द टेक्निक, स्पीड कम्स। क्लियर? तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।